بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں ماؤں بیٹوں، میرے چینل ام اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش آباد اور شاد رکھے۔ میرے پیاریوں اسلامی دینی درس کے بہن بھائیوں ماؤں بیٹوں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں۔ میری پیاریوں، آپ بھی اس اسلام کو پھیلانے میں حصہ لیں اور شیئر کریں اور سب کو یہ مسائل بتائیں۔ تو آج میں سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 21 کی آخری 3 آیاتیں پڑھ رہی ہوں۔ آخری آیات پڑھ رہی ہوں، 3 آیاتیں، تو ان کا ترجمہ اور ان کا تفسیر وصیت کے احکام میں ہے۔ یہ 3 آیاتیں وصیت کے احکام میں ہیں۔ تو لوگ ایسے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ وصیت کے بارے میں کوئی مسئلہ، تو یہ اللہ پاک نے جو قرآن میں بیان کر دیا، تو اب آپ کو یہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ كتب عليكم اذا تم پر فرض کیا، لکھ دیا، یعنی کہ کتبہ کا معنی عربی لفظی معنی لکھ دیا، تم پر اب ہم معنی کا فرض کیا۔ اذا حضر احدکم الموت، جب کہ تم میں سے کوئی، جب کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، حاضر ہو جائے، حاضرہ جب کہ حاضر ہو جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیر تو چھوڑ دے بہتر، تو یہ کہ وہ چھوڑ جائے بہتر چیزیں، بہتر بنا کے، للوصیت تو اپنے والدین، بہتر میں کیا ہے، الوصیتی بہتر چھوڑے وہ بہترین، کیا بہتر کون ہے، بہتر والدین، تو اپنے وصیت للوالدین تو اپنے والدین، والاقربین اور قرابت والے، بالمعروف وصیت کرے ان کے لیے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین یہ حکم ہے لازم ان لوگوں پر جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو شخص سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے، پھر جو شخص بدل ڈالے اس کو بعد اس کے سننے کے، فإنما اسمہ تو پس بے شک اس پر گناہ ہے، علی الذین جس نے یبدلون جن لوگوں نے بدلی لونہا اس کی وصیت، جن لوگوں نے بدل ڈالی اس شخص کی وصیت کو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تو سن رہا تھا، وہ جاننے والا بھی ہے۔ فمن خاف پھر جو شخص وصیت کرنے والے کی جانب سے، من موصن جانب سے کسی جانب داری کی یا کسی کی طرف ہو گیا خفیہ طور پر، یا تو او اسمن تو اس پر گناہ کا خوف ہے، گناہ ہے اس پر، فاصلح
जिसने बदल डाली तो उस पर या किसी की जानिब से हो गया तो उस पर गुनाह है। फ़अस्लहू, फिर जो शख्स बैनाम उन दोनों के दरमियान आ जाए, फिर उनमें सुलह करवा दे, फला इस्मा अलैह, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, तो इस आयत में सबसे पहले वसीयत क्या, मरने वाले को भी अल्लाह ने यही हुक्म दिया कि सबसे पहले वालिदैन के लिए वसीयत करे। अगर जिसको मालूम हो जाए कि मेरी मौत का वक्त करीब है, या मुझे मौत आने वाली है, या ऐसी बीमारी हो जाए कि मौत के आसार पैदा हो जाते हैं, तो उसने छोड़ा बेहतर चीज़ें क्या, बेहतर वालिदैन हैं, तो वो उसको पता है मेरे वालिदैन ज़िंदा बैठे हैं, तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए वो वसीयत करे, वालिदैन के लिए। फिर दूसरी बात बना कि अपने रिश्तेदारों के लिए भी, कराबत वालों के लिए भी कर सकता है। तो इसमें ये सोचने की बात है, तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन का कितना ख्याल रखा है कि वालिदैन कितने अजीम चीज़ हैं, कितनी ही उनमें अज़मत है कि औलाद है तो उसको पता चल जाए कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तो वालिदैन के बारे में लाजमी वसीयत कर ले कि मेरे वालिदैन हैं। वसीयत करने की फिर क्या बताया अल्लाह पाक ने, सिर्फ वसीयत करे, तो वसीयत करने में क्या सिर्फ तिहाई माल में नाफिज हो सकती है। वसीयत कितने माल में होती है? तिहाई माल में, तीसरे हिस्से में वसीयत कर सकता है मरने वाला। बेहतर ये है कि मरने वाला तिहाई माल से और इस तिहाई माल में कर सकता है। अगर उसका माल बहुत ज़्यादा है तो तिहाई माल से भी कम वसीयत कर सकता है, इसका भी उसको हुक्म है। और ये तिहाई माल की वसीयत ही बहुत से बहुत तिहाई माल तक वसीयत करने की गुंजाइश है। जितनी भी वसीयत होंगी वो, और सबसे पहली बात यह है, अगर मरने वाले के ऊपर कर्ज है, कोई कर्ज उसने अदा करना है, तो पहले कर्ज को मुकद्दम करना चाहिए, पहले उसका कर्ज अदा करना चाहिए, फिर माल को जमा करके फिर तिहाई माल में वसीयत को नाफिज करना चाहिए। तो ये तो आज का मसला, ये कुरान पाक की वसीयत के बारे में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। तो एक मसला और है, मसला ये है, इसमें एक मसले की बात है, शरीयत की बात है। वसीयत करने में पहले फ़राइज़ को मुकद्दम किया जाता है। फ़राइज़ में क्या है? मिसाल के तौर पर माल बहुत था, वसीयत करने वाले ने हज फ़र्ज़ नहीं किया था, इसके ज़िम्मा हज फ़र्ज़ भी नहीं किया था, इसके ज़िम्मा ज़कातें फ़र्ज़ हुई थी और इसने नहीं दी, या किफ़ारात वाजिब हैं जिनकी अदायगी बाकी नहीं है, अदायगी नहीं की, इन चीज़ों की अदायगी को वसीयत में मुकद्दम करे और वसीयत करे इन चीज़ों की। अपने अगर वसीयत कर रहा है तो इन चीज़ों की वसीयत करे। अगर इसने फ़राइज़ और वाजिबात के साथ गैर फ़र्ज़ की बात की तो वसीयत तब भी उन लोगों पर लाजिम है जिनके कब्ज़े में उनका माल आ जाएगा। फ़राइज़ और वाजिबात को मुकद्दम करेंगे, पहले फ़र्ज़ जो फ़राइज़ हैं और ज़कात के और कर्ज़ के, ये देकर फिर तिहाई माल में वसीयत को मुकद्दम करना है, ये मसला है। तो आगे ये भी मसला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वारसों को हक़ दिया है कि किसी को हज उसका पर फ़र्ज़ था, तो मसला है हज बदल की वसीयत उसने की है, तो जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ है, कर्ज़ों की अदायगी के बाद तिहाई माल में वसीयत नाफिज होगी। अगरचा हज का नाम हज की वसीयत की है उसने, तो उसको वारसों को चाहिए कि तिहाई माल कम होता है तो उसकी वसीयत को पूरा करें और हज ने बदल अदा करवाएं।